In this video, we will discuss about epistasis. What is epistasis? Epistasis is the phenomenon of masking or suppressing the expression of a gene by another non-allelic gene. तो सबसे पहले हम गौर करते हैं शब्द पे मास्किंग. मास्किंग माने किसी को कवर कर लेना. सिटिंग ओवर. एपिस्टेसिस का मीनिंग होता है सिटिंग ओवर. जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशंस को कवर कर लेता है तो हम उसे कहते हैं एपिस्टेसिस. सपोज ये एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का. ये दूसरा पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का. अब इसके लोकस पर जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए और इसके लोकस पे प्रेजेंट है कैपिटल बी स्मॉल बी. तो ये एक पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का और ये दूसरा पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का. जब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का एलील दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के एलील के ऊपर मास्किंग इफेक्ट दिखाता है या उसको सप्रेस कर देता है तो हम उसे एपिस्टेसिस कहते हैं. जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी के एक्सप्रेशंस को दबा दे या ख़त्म कर दे तो इसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं. अब ये एलील कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है. अगर ये कैपिटल ए है तो हम कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस. और यदि ये मास्किंग इफेक्ट और एक्सप्रेशन रेसेसिव एलील के कारण है तो हम इसे कहेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस. So, on the basis of alleles, whether it is dominant or recessive, epistasis are divided into two parts: dominant epistasis and recessive epistasis. The gene which dominate over the another non-allelic gene is called epistatic gene, while the gene that suppresses its characteristics is called hypostatic gene. So, in epistasis, two type of genes are present. That show dominancy is called epistatic gene and that suppress in the presence of epistatic gene is called hypostatic gene. In this example, epistatic gene is capital A while the hypostatic gene is capital B. Now a question arises in our mind, is it dominancy? So for clearing this doubt, here I give the difference between dominance and epistasis. Number one, it involves single pair of alleles. It means it occurs between two alleles of a homologous chromosome. Suppose between capital A and small a. So here we can write capital A and small a. While the epistasis occurs between two pairs of alleles. As I already said about it, capital A, small a, between capital B, small b. So here we can represent it. Now the second point, a gene suppress the expression of its allele. जैसा कि हमने पहले देखा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए के एक्सप्रेशंस को सप्रेस करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जबकि इसमें अ जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलील्स. इट मीन्स कैपिटल ए does not suppress the small a, it suppress the another non-allelic gene, that is capital B. The third point, effect of only recessive allele is suppressed.
as we know, in the law of dominance, one character show dominancy and other show recessiveness. So it occurs in a single pair of chromosome. So this point is clear from the law of dominance. Effect of only recessive allele is suppressed, while here effect of dominant and recessive non-allele is suppressed. ये जो कैपिटल A है ये कैपिटल B और स्मॉल b दोनों के कैरेक्टर्स को सप्रेस कर सकता है. Now the another point, effect is always due to the dominant allele. In the law of dominance, one character is dominant and other is recessive. So only dominant अपना इफेक्ट देगा नेक्स्ट जनरेशन में, बट रेसेसिव नहीं देगा. इफेक्ट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट और रेसेसिव एलिल. इट मीन्स जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे शो किया, यदि डोमिनेंट एलिल की वजह से इफेक्ट है तो हम उसे कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और यदि रेसेसिव एलिल की वजह से इफेक्ट दे रहा है तो हम उसे कहेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस. इट मीन्स इसमें दोनों एलिल्स अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं. Both the alleles of a gene cannot mutually dominate. इसका ये मतलब होता है कि जो डोमिनेंट है वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट जो रेसेसिव है वो रेसेसिव ही रहेगा, जबकि इसमें नॉन एलील कैन बी म्यूचुअली डोमिनेंट. नॉन एलील किस कंडीशन में डोमिनेंट होगा वो मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगी. नंबर 6, इट प्रोड्यूसेस टिपिकल मेंडेलियन रेशियो. टिपिकल मेंडेलियन रेशियो क्या होता है? यदि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो इट इज 3:1. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इट इज 9:3:1. तो ये टिपिकल मेंडेलियन रेशियो हुए. जबकि ये जो एपिस्टेसिस है इट शोज मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो. इट मीन्स अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो 3:1 की जगह 2:1 शो हो जाएगा. ऐसे ही 9:3:3:1 है तो ये 12:3:1 भी शो हो सकता है, या फिर ये 9:3:4 भी शो हो सकता है. तो ये क्या है? मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो है. नंबर 7, द लास्ट, इंट्राजेनिक. डोमिनेंस हमेशा इंट्राजेनिक होती है. जैसा कि जब हमने जीन इंटरेक्शन अपना ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने अपने वीडियो में बताया था इंट्राजेनिक का मतलब होता है जब एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम के एलिल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम के दोनों एलिल्स, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं इंट्राजेनिक. और इंटरजेनिक एपिस्टेसिस में इंटरजेनिक होता है, यानी ये एक पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है. जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम कहते हैं इंटरजेनिक, यानी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स के बीच में या दो नॉन एलिलिक जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं.